Hello friends, today we are going to interpret the topic money and banking. As you know that this very topic is very important for competitive examinations. In all types of competitive examinations, this chapter plays very important role. You know that in the UPSC examinations or BPSC examinations, even SSC or banking, from this chapter, many questions are frequently asked. That's why it is very important for us to grasp the contents of this passage very clearly. Today, we have selected the topic money and banking. Money and banking. First of all, we should know the proper definition of money. Usually in our day-to-day life, practical life, we know what is money and what is the role of money. But technically we should know it. In the view of Robertson, anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other kinds of obligations is called money. मतलब कि whatever we pay to get something, to buy something in the market, any object, any article we have to pay for any goods or any services or any types of obligation is called money. मान लीजिए कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो जनरली जो ऑब्जेक्ट जो चीज़ हम उनके बदले में देते हैं वो सारे मनी कहलाते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मनी. यह मुद्रा का सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है. ऐसे कई लोगों का मानना है, अलग अलग मनी के बारे में अलग अलग सोच है, अलग अलग डेफिनेशन है. कुछ लोग मानते हैं मनी इज दैट मनी डज, यानी मनी वह है जो मनी करता है. इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग दैट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी इज मनी. मीन्स कि वट एवर द functions performed by money is called money. Perhaps it is one of the best definition of money. To know this, we have to study the functions of money. In further, in next session, I will discuss what are the functions of money. Now let us start the role of and importance of money in modern economy. So we have already discussed about money. What kind of roles are performed by money in the modern economy? As we know that in ancient time, बहुत पुराने समय में generally there was no existence of money. In that phase, we get goods that is called barter system. Means in the absence of monetary system is called barter system. But now in the modern economy, there is existence of money, and we should know the role and importance of money in the modern economy. There is no doubt that money facilitates and motivates all economic activities. Means कि मनी जो है वो सारे जो एक्शन, जो भी एक्टिविटीज होते हैं
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन मीन्स उपभोग, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, एक्सचेंज मीन्स विनिमय और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण। These four activities are generally practiced in the economy. Means consumption, मतलब कोई चीज़ अगर हमें लेना है, कोई कंजम्पशन करना है, तो for that purpose we have to pay money. For production we have to pay for money. If you want to exchange something, get something, gain something, you will have to pay money. And for distribution purpose, money is also practiced. That's why money plays very prominent role in the modern economy. You know, without money, the modern economy cannot be imagined. That's why it is the integral part of the modern economy. If there is no money, there is no a sound economy, there is not an appreciable economy. If we want to increase the economy, expand the economy, there must be the existence of money. Money enables some consumer to maximize his or her satisfaction. Means ये कह रहा है कि money enables the consumer to, अगर हमारे पास मनी है तो हम अपनी सेटिस्फैक्शन को अधिक से अधिक पूरा कर सकते हैं। मतलब कि मनी का यहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है मनी मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर एंड द यूटिलिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। मीन्स वी ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर इन टर्म ऑफ मनी। मनी से हमारा जो कंजम्पशन का क्या इंटेंसिटी होता है वो भी पता चलता है। It gives mobility to capital and helps in capital formation. Capital formation मीन्स होगा कि पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण कैसे होता है? मान लो कि 1 मिनट के लिए अगर आपके पास आपकी इकोनॉमी में अगर मुद्रा का एग्जिस्टेंस नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन होना संभव नहीं है। मान लो जितना उत्पादन किए वो एक ड्यूरेशन के बाद वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, नजदीके हो जाता है। इन दैट केस यू विल नेवर एक्युमुलेट फॉर्म मनी कैपिटल। सो फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ मनी। दैट्स व्हाई मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। नेक्स्ट इट enables the harnessing of various factors of production so that the entrepreneur is able to maximize his profits. और मनी के टर्म में ही अगर कोई इंटरप्रेन्योर हो तो अगर मनी नहीं हो तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता है। फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ मनी। यानी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मनी 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 जितना जगह जाओ मनी मॉडर्न इकोनॉमी में हर जगह मनी का रोल है, हर जगह मनी का रोल है। एज ए स्टूडेंट अगर आप लोग क्लास कर रहे होंगे एज ए स्टूडेंट तो आप देखेंगे कि आप हर जगह मनी है। मॉर्निंग से अगर सो करके उठते हैं उसके बाद मनी, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मनी 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 मीन्स कि यू हैव टू फुलफिल योर नीड्स बाय पेइंग मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट एक्सचेंज एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब आगे देखिएगा कि यदि मनी नहीं है तो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड संभव नहीं होता। इसलिए नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में मनी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर भी मनी का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है मनी फंक्शंस एज कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल प्रोडक्ट। इट इज इन टर्म ऑफ मनी दैट वेजेस, जैसे मान लो कि वेज मीन्स होता है मजदूरी। तो मजदूरी जो लोग काम करते हैं, मजदूर होते हैं, वर्क करते हैं, उनके बदले उन्हें मजदूरी प्राप्त होता है। कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके बदले उन्हें जो सैलरी मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड वेज। वो वेज है।
मजदूरी है। मजदूरी भी किस रूप में मिलता है? नकदी के रूप में मिलता है, कैश के रूप में मिलता है, मनी के रूप में मिलता है। ऐसा नहीं होता है मजदूरी की, एक जमाने में था जब बार्टर सिस्टम था तो उस समय गुड्स के रूप में दिया जाता था, चावल दे दिया जाता था, आटा दे दिया जाता था, गेहूं दे दिया जाता था। लेकिन बात कर रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के बारे में, मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में। तो मॉडर्न इकोनॉमी में बिना मनी का, मतलब कि जो कोई काम करेगा, जॉब करेगा, एम्प्लॉय होगा, ही विल बी पेड इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको भी मनी मिलता है या मनी के मेजरमेंट में कुछ मिलता है। सेकंड है रेंट। रेंट मीन्स होता है लगान, मतलब किराया। जमीन को रेंट मिलता है, लगान मिलता है, मकान को रेंट मिलता है। तो रेंट भी जो दिया जाता है इट पे इन टर्म ऑफ मनी, दैट्स व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट हियर। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी इन बैंक यू विल बी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब लेबर के लिए वेज मिलता है। लेबर के लिए क्या मिलेगा? लेबर को वेज मिलता है। चाहे आप आईएएस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्लर्क हो, पुलिसमैन हो, जो भी हो, वर्कर हो, यू विल बी पेड इन टर्म ऑफ वेज एंड वेज विल बी पेड इन टर्म ऑफ मनी। वेज के रूप में आपको क्या दिया जाएगा? मनी दिया जाता है। वो अलग बात है कि ऑफलाइन मनी है, ऑनलाइन मनी है, कौन अलग अलग, लेकिन वो मनी के रूप में ही दिया जाता है। नेक्स्ट है एंड प्रॉफिट, और जो लाभ। लाभ का मतलब होता है कोई बिजनेसमैन कोई पूंजी को एम्प्लॉय करता है, उस पर जो उसकी प्रॉफिट होता है वो लाभ होता है। इन्वेस्टमेंट को लाभ मिलता है। तो कितना लाभ मिला, कितना इंटरेस्ट मिला, कितनी मजदूरी मिली, कितनी ब्याज मिला, ये सारे चीज डिटरमिन होते हैं मनी के टर्म में। दैट्स व्हाई मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न इकोनॉमी। Further, money helps the price mechanism to operate and serve as an instrument for the allocation of resources among competing users. कह रहा है यहाँ पे कि मनी प्राइस मैकेनिज्म को भी ठीक करता है and operate the serve and an instrument for the allocation of resources among competing users. Next है मनी इज एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोशल इंस्ट्रूमेंट। मतलब मनी को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में माना गया है, टूल्स के रूप में माना गया है। यू नो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ टूल एंड इंस्ट्रूमेंट? टूल एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स इट इज द सपोर्टिंग एलिमेंट। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर सपोर्टिंग एलिमेंट्स बाय विच यू कैन डू योर वर्क वेरी इजली। इन द सेम मैनर money also support the economy. It provides smoothness to the economy by which our economy goes very smoothly without any disturbance. Sometimes you know that in our practical life, मान लो कि अगर आपके पास 2000 का नोट है और आपको एक कप चाय पीनी है, 2000 के नोट है, एक कप चाय पीनी है बाजार में, या मान लो कि एक रिफिल लेना है, पेन के लिए एक रिफिल लेना है 5 रुपये का, तो आप आसानी से नहीं कर पाते हैं, एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप चाय ना पिए क्योंकि आपके नोट का जो स्ट्रेंथ है, इंटरनल पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। 2000 के नोट और 10 रुपये की चाय पीनी हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपको कितना का नोट चाहिए? आपको अगर 50 रुपये का नोट हो, 20 रुपये का नोट हो, 10 रुपये का नोट हो, तो आप इजीली चाय भी पी लेंगे, एक रिफिल भी ले लेंगे। और फिर अगर 2000 के नोट हो और 2000 के लाइक अगर आप 1500 का कोई सामान लेते हैं, 1000 का सामान लेते हैं, तो इजीली कैरेबल है, पोर्टेबल है और आसानी से आप उस सामान को गेन कर लेते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स टू टैकल द इकोनॉमी, टू प्रैक्टिस द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न लाइफ। और नेक्स्ट है सोशल इंस्ट्रूमेंट है विच हैज लार्जली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द नेशनल वेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। मतलब कि
हमारे देश में जो सोशल वेल्थ है या एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हमारा नेशनल वेल्थ भी इम्प्रूव होता है और मैक्सिमम सोसाइटी के लिए वेलफेयर का भी काम होता है। मनी के टर्म में इट हैज एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मनी के माध्यम से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, औद्योगिकरण को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एंड whatever the types of economic system, money is found to be the great services। अब आपके देश की इकोनॉमी का सिस्टम जो भी हो, इकोनॉमिक सिस्टम मान लो कि अगर कैपिटलिस्टिक हो, सोशलिस्टिक हो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, authoritarian economy, different types of economy are surviving in our world, in this world. Whatever types of economy, but money is the integral part of that very economy. It doesn't matter that this economy is capitalistic or socialistic or whatever types of economic setup, but money has to play, money plays central role for the upgradation, for the expansion, for the maintenance of the economy and economic life of an individual. That's why we can say that money is the integral part of my life and it plays very important role in my life. Further, now we see that what is the role of money in the capitalistic economy। अब हम ये देखेंगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हमारा जो हमारी मनी जो मुद्रा है वह किस तरह से रोल प्ले करती है इन ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, इनके इम्पैक्ट अलग अलग हो सकते हैं, तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विदाउट मनी एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज it has made very easy to the economy। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मनी का क्या रोल है, कैसे वो अपना रोल प्ले करता है। फर्स्ट, in a capitalistic economy money plays an important role because capitalism basically depends on price mechanism which operates through medium of money। अब देखेंगे, first of all we should know in the different other classes I will interpret you the capitalistic economy and the socialist economy in very details, but now we see that in a capitalistic economy यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूंकि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो पूरी तरह से प्राइस मैकेनिज्म पर है, पूरी तरह से वो प्राइस मैकेनिज्म पर ऑपरेट होता है, मतलब हर चीज के कीमत के आधार पे लगाया जाता है हर चीज को। अगर इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है तो उस इकोनॉमी में हर चीज बिकेगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक सबसे बड़ी बात ये है, आप समझ जाएंगे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है। सबसे बड़ी बात है कि इफ यू हैव, लेखक ने कहा, इकोनॉमिस्ट का मानना है, उसने कहा क्या है कि इफ यू हैव नो मनी यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर। इफ यू हैव नो मनी यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर। कितनी बड़ी बात। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप पानी नहीं पी सकते। बात भी सही है। आप लोग कभी जरूर ट्रेन पे जाते हैं या कहीं, तो आपको उस पानी को गेन करने के लिए पैसा देना पड़ता है। बहुत लोग वहाँ लोकल स्टेशन से पानी नलका से भर लेता है, बॉटल भर लिया, लेकिन बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो नलके का पानी नहीं पीना चाहते, वो ट्रेन पे तो उनको उसके लिए पैसा देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कैपिटलिज्म में सब कुछ प्राइस होता है। प्राइस का मतलब होता है हर चीज बिकता है, मतलब कि बेचने और खरीदने के बीच जो हम पे करते हैं, पे लेते हैं, देते हैं, उसको हम प्राइस कहते हैं, कीमत कहते हैं। तो एक तरह से कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर में बेस्ड होता है। अब गौर करेंगे तो इवन इन ए सोशलिस्टिक इकोनॉमी, लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी प्राइस टैक्स आर एसेंशियल, प्राइस टैक्स आर एसेंशियल फॉर इट्स स्मूथ। और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी प्राइस
जरूरी होता है, प्राइस टैग जरूरी होता है, क्योंकि इसी से उस देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एक स्मूथ, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वर्किंग एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाता है। सो हम ये नहीं कह रहे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ही मनी का रोल होता है या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं होता है, कम या ज़्यादा, लेकिन चूंकि किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, उस देश की इकोनॉमी में मनी का रोल होता है। हाँ, हो सकता है उद्देश्य अलग अलग हो, जैसे मान लो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में भी किसी चीज़ पे दाम लिखा रहेगा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी दाम लिखा रहेगा, लेकिन फर्क यही होता है कि कैपिटलिज्म जो होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इज द सोल मोटिव ऑफ द कैपिटलिज्म। हाउ टू अपग्रेड, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक उसे लाभ की जरूरत होती है। इस सिद्धांत पे कैपिटलिज्म वर्क करता है। ऑन दी अदर हैंड, सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन maximum welfare. It assures and provides, or in the socialistic economy, the government or administration or system, they are dedicated to provide maximum welfare to its masses, to its population, to its citizen, to its people. This is the basic difference between capitalism and socialism. And there are also different differences between, and we will discuss all this in the next videos. Next, it is said while money is a master in the capitalist economy, यानी यहाँ पे एक लेखक का कहना है, यहाँ पे ये मानना होता है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो मनी है वो मास्टर का रोल करता है। मास्टर का मतलब होता है कि जो डिक्टेट करता है, जो लोगों को डिसिप्लिन में रखता है। मास्टर का मतलब होता है कि वो कंट्रोल करता है। तो मनी कंट्रोल्स इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मनी क्या होता है, कंट्रोल करता है। ऑन द अदर हैंड, इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मनी प्लेज लाइक एज अ सर्वेंट, मीन्स मनी इज अ सर्वेंट इन द सोशलिस्टिक इकोनॉमी बट मास्टर इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब मनी मार्केट में मतलब कि मनी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कैसे डिक्टेट करता है और कैसे मनी सोशलिस्टिक मार्केट में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कैसे वो हेल्पफुल होता है, कैसे वो सर्वेंट का रोल प्ले करता है। हालांकि दोनों हालात में मनी क्या होता है, हेल्पफुल होता है, टूल्स होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो इकोनॉमी को क्या करता है, इजी फैसिलिटेट करता है, कुछ वहां पे क्या करता है, सपोर्ट करता है इकोनॉमी के लिए, एक्सपेंशन के लिए। लेकिन यहां पे देखेंगे तो मनी ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब वी हैव टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेटअप इन द वर्ल्ड, लाइक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, hidden economy. There are different types of economy. Parallel economy, hidden economy. So we have to study different types of economy. In the next video, we will discuss all types of economic setup. And all types of economic setup are found in this world. मान लो कि इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, पर इंडिया तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी भी है। अब कैसे डेवलपिंग इकोनॉमी है और कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, इनको जानना बेहद ज़रूरी है, खास करके जो यूपीएससी और बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये अंतर को जानना होगा। पीटी का मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अब है कि इट प्लेज मनी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम इन द प्राइवेट सेक्टर। इट इज हेल्पफुल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर चेंजिंग द pattern of income distribution. It is a powerful instrument for capital formation and economic development in the developing country. और एक चीज देखेंगे, अगर मान लो कि आपके देश के अंदर भी मॉनेटरी सिस्टम अगर वीक है, कमजोर है, मनी नहीं है, तो जरूरी होता है कि अगर डेवलपिंग कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी को मजदूरी किस रूप में देंगे, मनी के रूप में देंगे,
इन्वेस्टमेंट किस रूप में करेंगे? मनी के रूप में करेंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस रूप में करेंगे? मनी के रूप में करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मनी प्लेज so many roles, all types of roles in our economy. That's why if your economy is a developing economy, in this economy money plays very vital role for its development. Next, now we see the barter system. We have already discussed about the role of money in the modern economy. Which type of roles played by money we have already discussed. Now we see the barter system. It is just opposite of the monetary system. When the exchange is done, when exchange is done without the intervention of money, we call it barter system. मतलब कि अभी हमारे देश में मान लो कि मनी का कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर मनी है भी लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। अभी भी आप देखोगे कि इन रिमोट एरियाज और इन ट्राइबल एरियाज और इन रूरल एरियाज वी हैव आल्सो सीन द प्रैक्टिसेस ऑफ बार्टर सिस्टम। प्रतिशत में गांव में आज से 30, 40, 35 साल 25 साल पहले गांव में भी ज़्यादातर इकोनॉमी बार्टर सिस्टम में ही डील होता था, किया जाता था। मान लो कि अगर मेरे पास चावल है, गेहूँ है, दुकानदार के पास गए और हमने उससे क्या कर लिया, वो बदल लिया, नमक बदल लिया। लेकिन फिर भी चूंकि मॉनेटरी सिस्टम है इसलिए गेहूं का पहले दाम क्या होता है, फिर नमक का दाम क्या होता है, उस हिसाब से हम लोग करते थे। लेकिन अगर मान लो कि पूरी तरह से इकोनॉमी में मनी का अस्तित्व ही नहीं है पूरी दुनिया में या हमारे देश में या जहाँ कहीं भी, तो ऐसे में हम जो भी चीज़ लेन देन करते थे बार्टर सिस्टम से करते थे। मतलब बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय, यानी वस्तु देकर के वस्तु को लेना होता है। However, it is possible only under extremely simple conditions and exchange, but in a complex social organization, the barter system is not a satisfactory method. हाँ, लेकिन एक चीज देखेंगे कि बार्टर सिस्टम तो पहले होता था, लेकिन चूंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कठिनाइयां थी, जिस कठिनाइयों के बारे में हम आगे जिक्र करें। नेक्स्ट देखेंगे कि when exchange is done without the intervention of money, we call it barter system. इसको क्या मानेंगे? बार्टर सिस्टम मानेंगे। मतलब कि यहाँ पे मुद्रा का कोई रोल नहीं है, मुद्रा की कोई भूमिका। हम देखेंगे यहाँ पे कि बार्टर सिस्टम हाउएवर इज पॉसिबल ओनली अंडर एक्सट्रीमली सिंपल, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बार्टर सिस्टम बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इसी को इजी सुगम बनाने के लिए मॉनेटरी सिस्टम दुनिया में लाया गया। नेक्स्ट, नाउ वी सी मेनी डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब ये देखें कि बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि अगर आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इस युग में मान लो कि अगर मॉनेटरी सिस्टम ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगा। पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। फर्स्ट क्या प्रॉब्लम होगा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब कि इसका मतलब होता है कि दो व्यक्ति इधर और उधर है या और अन्य लोग हैं, तो हमारे और आपके दोनों का जो डिजायर है, वांट्स है ना, वो कोइंसाइड करना चाहिए। मतलब कि बार्टर रिक्वायर्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इफ ए पॉजेसेस ए काउ। एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर कोई ए व्यक्ति है, उसके पास एक गाय है एंड ही वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर अ हॉर्स। मतलब गाय वाला चाहता है कि हम गाय बेच करके हॉर्स ले लें। He has to find a person who not only can spare a horse but also wants cow। मतलब कि यहां पे ये देखना है कि मान लो कि
यदि किसी व्यक्ति के पास एक गाय है, राम के पास गाय है, श्याम के पास गाय है, एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सचेंज इट फॉर द हॉर्स, और उसे क्या चाहिए? हॉर्स चाहिए। देन ही हैज टू फाइंड अ पर्सन। इन दैट केस क्या चाहिए? हॉर्स चाहिए। गाय है तो फिलहाल अभी अगर मेरे पास गाय है और मुझे हॉर्स चाहिए, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द मॉनेटरी सिस्टम। आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गाय को बेच देंगे, कोई आदमी मुझे कैश दे देगा, या गाय को रखेंगे, कोई बात नहीं है, हम कैश ले जाएंगे और हॉर्स को खरीद लेंगे। और जब होगा फिर गाय अगर रखना होगा रखेंगे, नहीं तो बेचना होगा बेच देंगे। लेकिन इन द बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत है कि अब हमें एक्सचेंज करना है, देयर इज नो मनी। तो हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिनके पास की स्पेयर हॉर्स है, मतलब कि उनके पास स्पेयर हॉर्स है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर एक्सचेंज। इससे एक्सचेंज नहीं होगा। पहला कि उनके पास हॉर्स है, स्पेयर हॉर्स है या हॉर्स है, और वो हॉर्स को हटाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, और गाय खरीदना चाहते हैं, तभी बार्टर सिस्टम सफल होगा। समझ रहे हैं? मतलब कि I want to buy, I want to exchange, I need a horse, I have a cow, and now I have to find that person who has horse, and he wants to sell his or her horse, and also wants to take a cow. In that condition there will be exchanged. में ऐसे हालात में हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब हम उसे गाय देंगे और उससे हॉर्स ले लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ढूंढना पड़ेगा। अब मान लो कि सपोज ही मीट्स बी और नॉट हु वांट्स अ काउ बट कैन ओनली ऑफ शिप। अब लेकिन मान लो कि एक व्यक्ति ऐसा मिल गया बी जो कि काउ चाहिए जिसको, और वो उसके बदले शिप बेचेगा, भेड़ बेचेगा। क्या बेचेगा? भेड़ बेचेगा। May then have to find a man who wants ship and so on until he can get the commodity he wants by a series of barter transactions. तो A may then have to find a man who wants to ship. अब A वाले को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गया, मतलब मान लो कि A, B और C हो गया। इनके पास काव है, हॉर्स इसके पास है, और इसके पास शिप है। इसे क्या चाहिए? हॉर्स चाहिए, लेकिन इसको हॉर्स नहीं चाहिए, इसको शिप चाहिए। और शिप वाले को क्या चाहिए? काऊ चाहिए। हां, अगर मान लो कि काऊ वाले को डायरेक्ट हॉर्स चाहिए, हॉर्स वाले को डायरेक्ट काऊ चाहिए, इजीली एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर ना हो तो इसीलिए कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो जरूरी है, तो काव वाले क्या खोजेगा? पहले खोजेगा किसको? काव वाले खोजेगा। अगर बी को खोजा तो सी को खोजा तो वहां पे हॉर्स है, बी को खोजा तो शिप है। मतलब हॉर्स वाले से कहा कि भाई आप अपना घोड़ा हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें घोड़ा चाहिए। पर सी वाले ने कहा कि मुझे इसके बदले गाय नहीं चाहिए। एक प्रॉब्लम हो गया, एक्सचेंज रुक जाएगा। लेकिन क्या मॉनेटरी सिस्टम में ये एक्सचेंज रुक सकता है? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि हम अपना गाय बेच देंगे, घोड़ा ले लेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। फिर शिप वाले के पास जाएंगे तो शिप वाले को बोलेंगे कि भाई आपको चाहिए गाय? तो हाँ चाहिए। और घोड़े वाले को बोले कि आपको शिप चाहिए? हाँ चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में सेटल होगा कि गाय वाला गाय देगा घोड़ा वाले को, घोड़ा शिप वाले को देगा, शिप घोड़े वाले को जाएगा, और घोड़ा गाय वाले को आएगा। तब ऐसे में एक्सचेंज होगा। यानी यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। इट वाज द रियली
very problematic situation and very difficulties in the barter system. Next, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है फिर देखेंगे हम लोग, लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। सेकेंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। अब क्या है कि आप किसी, अगर मान लो कि मुर्गी का वैल्यू तो गाय के बराबर नहीं हो सकता है, ये तो फिर प्रॉब्लम होगा। यहां पर भी दूसरी प्रॉब्लम ये है, तो मान लो कि इफ टू पर्सन्स हु वांट्स टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स, इन व्हाट प्रोपोर्शन दी टू गुड्स आर टू बी एक्सचेंज्ड। तो यदि दो व्यक्ति आपस में एक्सचेंज करना चाहे तो किस प्रोपोर्शन में एक्सचेंज होगा, किस प्रोपोर्शन में एक्सचेंज होगा। यदि दो व्यक्ति आपस में एक्सचेंज करना चाहे तो इन व्हाट प्रोपोर्शन देयर विल बी एक्सचेंज, उन वस्तुओं को एक्सचेंज कैसे करेंगे। मान लो कि देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई एक कॉमन मेजर नहीं, आज तो है, कम से कम है, मॉनेटरी सिस्टम में मेजर्स है कि आज ही अगर आपको मान लो कि कोई चीज, जैसे आप किसी मॉल में गए, मान लो कि अगर आपको लीका या किसी ब्रांडेड कंपनी का जींस लेना है, उसकी कीमत 4000 है, हम 4000 पे करेंगे, ले लेंगे। किसी अनब्रांडेड शर्ट का कीमत 1000 है, हम 1000 में ले लेंगे, 1000 देंगे, 1000 में लेंगे। ब्रांडेड शूज अगर वुडलैंड का लेना है, हम 7000 देंगे और शूज लेंगे। तो इस तरह से आज देयर इज नो प्रॉब्लम, बट दैट टाइम देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। The rations will be arbitrarily fixed. रेशियो, रेशन नहीं, रेशियो, ये रेशियो है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, मिसप्रिंट हो गया यहां पे। तो रेशियो विल बी आर्बिट्रेरली फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटीज ऑफ टू पार्टीज और द इंटेंसिटी ऑफ देयर रेसिप्रोकल डिजायर, डिमांड। तो पहले भी कोई एक पैरामीटर नहीं था कि भाई इस, आज तो है पैरामीटर, आप 2 रुपए का चीज भी मिल जाएगा मार्केट में, 100 रुपए का चीज मिल जाएगा। अगर उसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आपकी मर्जी, आप जो खाओगे उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। आप कम खाना खाओगे, कम पे करना पड़ेगा, कम कीमत का खाना खाओगे, कम कीमत पे करना पड़ेगा। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम इन द मेट्रिस्टिक वर्ल्ड, इन द मॉनेटरी सिस्टम देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द मॉनेटरी सिस्टम because this system has made easy for the function of the economy, for the function of the exchange of goods. लेकिन that time की एक प्रॉब्लम था, तो हम लोग क्या सोचते थे, आर्बिट्रली बैठ करके बात कर लेते थे और फिक्स कर लेते थे कि ये प्राइस होगा, क्या नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ऑफ द टू पार्टीज। और वो भी डिपेंड करता था कि किसको, किसी चीज की डिमांड की कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है। आज भी आप देखिएगा कि इंटेंसिटी के ऊपर में किसी चीज की प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। मान लो कि अगर कभी कभी फेस्टिवल्स के समय में देखिएगा कि फेस्टिवल्स है तो हमारे यहाँ फ्रूट्स का दाम बहुत बढ़ जाता है, वेजिटेबल्स का कीमत बढ़ जाता है, या अन्य आइटम्स का कीमत, कपड़े का कीमत बढ़ जाता है। तो इन द फेस्टिव सीजन्स ये लगता है कि सभी को जरूरी है, सबको चाहिए, यानी ऑल आर डिजायरस टू परचेज दैट आइटम्स। तो हर लोग जब बाजार में खरीदने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे दाम बढ़ जाता है, कीमतें उसी चीज़ की बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही डिजायर कम होता है, मतलब कि इंटेंसिटी कम होता है डिजायर का, तो प्राइस विल कम डाउन। तो इस तरह से ये होता है, डिपेंड करता है। मान लो कि अगर मुझे हर हाल में मुझे एक मटन खाने का मन हुआ और हमें एक बकरी चाहिए हर हालत में, लेखक कहता है कि अगर किसी को मटन खाने का मतलब है कि, लेकिन उसको देने के लिए उसके पास गाय है या घोड़े हैं, तो घोड़ा और मटन दोनों का तो शायद कीमत में अंतर होना
या दोनों का वैल्यू तो एक नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि सामने वाले को क्या है भाई, उसको चाहिए ही मटन, चलो मेरा घोड़ा जात हो जाए कोई बात नहीं, गाय भेज दे तो भेज दे, तो वो क्या करेगा कि ऐसे हालात में जो भी हो वो सामने वाले को गाय दे देगा और वो कम वैल्यू का मटन बकरी ले लेगा, लेकिन इसमें इसको घाटा भी लगेगा, लेकिन चूंकि उनकी डिजायर की जो इंटेंसिटी है वो काफी स्विफ्ट है, इसलिए वो ऐसे डील को पक्का कर लेगा, तो एक्सचेंज कर लेगा। इसलिए लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू ये एक प्रॉब्लम, दूसरी डिफिकल्टी होता है। थर्ड है इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स, इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स। तीसरा, अब देखिएगा कि एक उदाहरण यहां पे दिया है कि फ्रेंच सिंगर हु गेव परफॉर्मेंस इन एन आइलैंड वेयर मनी वाज नॉट इन यूज। अब एक फ्रेंच सिंगर है, वो परफॉर्म की ऐसे जगहों पर के ऊपर में, ऐसे आइलैंड पे उसने परफॉर्मेंस की, अपना संगीत का परफॉर्मेंस की, जहां पे कि मुद्रा का कोई प्रचलन ही नहीं था। मनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑन दैट वेरी आइलैंड, मतलब बोले तो मनी था ही नहीं, देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मनी, पर उसने परफॉर्म किया। नो डाउट अगर इसमें से शायद जो लोग ट्राइबल एरिया में हो रहते होंगे, या बहुत लोग अपने बड़ों से आप पूछें कि पहले के दौर में लोग अगर गांव में भिखारी जाता था या साधु गया कुछ भिक्षावृत्ति मांगने के लिए, या कोई मदारी खेल बाइस्कोप दिखाने वाला जाता था, तो वहाँ पे लोग ना, वहाँ कैश इकोनॉमी नहीं था, मॉनेटरी इकोनॉमी थोड़ा कम था, बहुत कम लोगों के पास पैसा होता था, तो लोग क्या करते थे, खुश होकर के कोई चावल दे दिए, कोई गेहूं दे दिए, कोई आटा दे दिए, कोई जो भी घर में जो आइटम था, बना हुआ था, प्रोडक्शन था, वो उसको अपना प्रोडक्ट्स को दे देते थे उनको। ये कब की बात है, जब, लेकिन आज के दौर में लगभग बहुत हद तक हमारे देश में भी मल्टी, और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे आज भी वाटर सिस्टम बड़े पैमाने पे चल रहा है। हमारे यहाँ भी ट्राइबल इलाके में आप जाइए या सुदूर गांव में इंटीरियर जाइएगा, तो अभी भी हाँ मनी भी है, पर अभी भी वाटर सिस्टम के रूप में प्रैक्टिस में आता है। तो ये कह रहा है कि एक सिंगर जब वहां पे सिंगिंग किया तो शी वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ पिग्स, उन्हें पिग्स मिला, गोट्स मिला, काउस मिला, बनानास मिला, एप्पल्स मिला, मतलब जिसको सब लोग खुश हुआ उस गीत संगीत को सुन करके, और जिसको जो लगा वो अपना घर से निकाल करके उसे दे दिया। She had to give the fruits and other things to her। अब क्या किया कि भाई अब जो उसके पास मिला था फ्रूट्स और वगैरह वगैरह थिंग्स, देखिए यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्यों मनी जरूरी है यहाँ पे आप समझ जाएगा बहुत आकर के, बाकी भी आप समझे होंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अब वो सिंगर ने क्या किया, सिंगर को मिला, फ्रूट मिला और अदर थिंग्स मिला, मान लो चावल मिला या कुछ मिला, अब क्या करना पड़ा इसको कि ये फ्रूट्स किसको देना पड़ा, तो उनके जो पिग्स थे और गोट्स थे उनको खिलाना पड़ा, क्योंकि उनको अब जिंदा भी रखना था, बकरी को जिंदा रखना था, पिग्स को जिंदा रखना था, इसलिए जो फ्रूट्स मिला था, जो कॉर्न्स मिला था, जो फूड ग्रेन्स मिला था, उस सभी को क्या करना पड़ा, उनको खिला देना पड़ा कि जिंदा रहे कम से कम। ये जो इनाम के रूप में जो जानवर मिला है रखने के लिए, गिफ्ट के रूप में मिला, ये हम इसे जिंदा रखने के लिए उसने अपने फलों को उन्हें खिला दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि फलों को तो खिला दिया, तो व्हाट डिड शी गेन, उससे मिला क्या, मतलब सिंगर को मिला क्या, कुछ नहीं मिला, देयर आर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। हैड शी बीन पेड इन मनी फॉर दोज परफॉर्मेंस, लेखक कह रहा है यहाँ पे, मतलब अर्थशास्त्री का मानना है कि यदि उनको इस जगह पे अगर मुद्रा मिलता, पैसा मिलता, कैश मिलता, नकदी मिलता, तो ही वुड हैव बिकम रिच, वो अमीर हो जाता, मतलब कि उस प्राइस में उनके पास पैसा मिलता तो पैसा सेव भी होता, पैसा पोर्टेबल भी होता और उससे वो अमीर बन सकता था। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, इन्हीं सारे डिफिकल्टी के कारण बहुत सारे ये परेशानियां हुई थी, मॉनेटरी सिस्टम नहीं थी तब, यानी बार्टर सिस्टम में दीज वर द मेजर डिफिकल्टीज
and these difficulties open the door of the existence of money, और इससे दुनिया में मुद्रा का उदय होता है। मतलब डिफिकल्टीज ऑफ वाटर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी विच पास थ्रू सेवरल स्टेजेस विच कमोडिटी मनी, मेट्रिक मनी, पेपर मनी एंड द क्रेडिट मनी एंड इवन की क्या आज ये वर्चुअल मनी के रूप में भी है। वर्चुअल मनी मतलब ई रूपी, क्लियर है? ई रूपी आज आप देखते हैं कि आप वर्चुअल मनी के रूप में भी आप देते हैं, मनी नहीं है भी मोबाइल से भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये कई स्टेज में आज मनी इस रूप में दिखाई दे रहा है आज मनी। और आज आप अगर मोबाइल रिचार्ज कराना हो, टीवी रिचार्ज कराना हो, किसी को कुछ देना हो, भेजना हो पैसा, तो आज हम मोबाइल के ऐप से हम क्या करते हैं, मनी को ट्रांसफर करते हैं। नाउ रियली इन द मॉडर्न इकोनॉमी, इन द मॉडर्न एरा, रियली मनी इज द बुन फॉर द इकोनॉमी एंड वी are in a very comfortable situation that money has made my life very easy and comfortable in term of transaction and to gain the new goods and commodities. Next, now we see the functions of money. Functions of money. What are the functions of money? This very chapter will support you more and more to know the role of money, to know the proper definition of money. मतलब कि अगर हम ये आपको फंक्शंस ऑफ मनी तक डील करेंगे तो लगभग आप मुद्रा के बारे में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज हैं, उसको और ब्रॉडली आप समझ पाएंगे। और यहाँ तक आते आते आप मनी के रोल के बारे में, मनी है क्या, उनकी क्या भूमिका है, इन सब के बारे में बड़ा इजीली से आप समझ पाएंगे, ध्यान देंगे। तो फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के क्या फंक्शंस होते हैं, मुद्रा के क्या फंक्शंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी? मनी परफॉर्म्स मेनली 4 फंक्शंस। मतलब अर्थशास्त्री ने बताया है कि मुद्रा मुख्यतः 4 कार्यों को करता है। इट हैज 4 फंक्शंस टू परफॉर्म। पहला है मीडियम और एक्सचेंज। पहला फंक्शंस क्या है? मीडियम और एक्सचेंज, मीडियम और एक्सचेंज। सेकेंड मेजर, थर्ड इज स्टैंडर्ड एंड फोर्थ इज स्टोर। मतलब मनी has 4 functions: medium, measure, standard, store. This is the very popular, it is said in very proverbial manner that money has functions for medium, measure, standard, store. So what do you mean by the medium of the money or exchange? It is the most important functions। कहा जाता है कि मुद्रा का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत देर से कर रहे थे कि बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कतें होती हैं। वही उन्हीं सिस्टम को, बार्टर सिस्टम जो एक्सचेंज की जो दिक्कतें होती हैं, तो पहला मुद्रा का पहला क्या है, पहला फंक्शन है कि अगर आपके पास मनी है तो आप किसी भी वस्तु से मुद्रा को एक्सचेंज करके ले सकते हैं। मतलब कि मनी मार्केट में एक्सचेंज का काम करता है। इफ यू वांट समथिंग टू फ्रॉम द मार्केट, यू विल हैव टू पे इन lieu of your goods. In that case, money is just like as the its role is just like as to exchange something. ध्यान देंगे, as a medium of exchange, money may removes all the difficulties in barter system. अब तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि बार्टर सिस्टम में जो दिक्कतें कि भाई मेरे पास गाय है, आपके उनके पास घोड़े हैं, उनके पास भेड़ है, उनके पास बकरियां हैं, हमें बकरी खरीदना है पर बकरी वाले को गाय नहीं चाहिए, बकरी वाले को घोड़ा चाहिए। दिक्कत है, लो भाई दिक्कत है। घोड़ा वाला बेचना नहीं चाहते तो फिर किसी और के पास जाएंगे, उससे वो उसको चाहिए गाय, तो उससे घोड़ा से एक्सचेंज करके फिर बकरी वाले को देंगे, फिर बकरी हम लेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स जो था वो प्रॉब्लम्स दूर कर दिए गए
in through the introduction of money in the modern economy. अब there is no necessity for a double incidence of wants in a money economy. अब आज के डेट में ये चक्कर नहीं है भाई, ये दिक्कतें नहीं है कि अब हमें कोई चीज लेने के लिए फिर एक ग्राहक खोजना पड़ेगा कि भाई तुम मेरे सामान को ले लो, फिर हमें वो सामान लेना है, या उससे नहीं मिला तीसरे नहीं, चौथा नहीं, पांचवा। ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी। इस डिफिकल्टी से कम मॉनेटरी सिस्टम में हमने क्या किया है, एक मेरे लिए सहज हो गया कि कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं अब हमें सिमिलरिटी खोजने का, डबल कोइंसिडेंस खोजने का कि भाई नहीं भाई उनको भी ये चीज चाहिए। द मैन विथ द काउ हु वांट्स टू परचेज ए हॉर्स नीड नॉट हंट फॉर अ हॉर्स। Sailor who wants a cow, he can sell his cow in the market. I have a cow, I will go to market and sell my cow, and onward I will buy or purchase a horse, and then purchase a horse with the money thus obtained. Clear हो गया? मतलब कि हम बस बाजार में जाएंगे, उसी बाजार में गाय बेच देंगे, उसी बाजार में घोड़ा खरीद लेंगे। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि घोड़े वाले को गाय नहीं चाहिए कि चाहिए और हमें घोड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कोई मैटर नहीं करता है। अब वो डिफिकल्टी कम से कम दूर हो गया इन मॉनेटरी सिस्टम में। नेक्स्ट इज मेजर। व्हेन मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इंसिडेंटली मेजर्स द वैल्यू ऑफ थिंग्स फॉर विच इट इज एक्सचेंज्ड। मेजर का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करना का मतलब होता है माप करना। मतलब कि मनी के टर्म में मुद्रा, इट इज मनी विच मेजर्स द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, विच मेजर्स द कि दिस गुड्स इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्या उनकी वैल्यू है, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, उसका हम मनी के रूप में। मान लो कि 1 मिनट के लिए अगर आप ट्रेन से जाते हो, ट्रेन से आप दिल्ली जाते हो 3rd क्लास में, या मान लो स्लीपर बॉगी में जाते हो तो उसकी भाड़ा कम है, एसी का भाड़ा 3 टायर में ज्यादा है, 2 टायर में भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां हम ज्यादा पे करते हैं वहां ज्यादा क्वालिटी हमें गेन करने को मिलता है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये भी आप जान लेंगे कि मनी क्या करता है, मनी के टर्म में, यानी द क्वालिटी ऑफ गुड्स, द क्वालिटी ऑफ गुड्स इन मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। मनी के टर्म में हम किसी वस्तु की क्वालिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जनरली जो कीमती वस्तुएं होती हैं, मतलब कि जो क्वालिटेटिव गुड्स होता है, क्वालिटेटिव गुड्स होता है, क्वालिटेटिव गुड्स कॉस्टली होता है जी। क्या होता है, कॉस्टली होता है। मतलब कि यू हैव टू पे मोर। मतलब अगर इफ यू पे मोर मनी इट मीन्स कि आप कोई क्वालिटेटिव गुड्स को ले रहे हैं। एक जनरल कंसेप्ट है कि हमेशा अपवाद अलग चीज होता है, कभी कभी हम ज्यादा पैसा देकर के खराब लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जनरली किसी भी चीज की क्वालिटी को जज करने के लिए कि ये चीज अच्छा है खराब है, वो है क्वालिटी का चीज है, उसके लिए हम मनी के टर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो 1 मिनट के लिए एग्जांपल के रूप में सिल्वर हो गया और गोल्ड, दोनों में कीमत किसका ज्यादा है भाई, तो गोल्ड का कीमत ज्यादा है। इसलिए गोल्ड का कीमत ज्यादा है, इसका मतलब गोल्ड की क्वालिटी भी ज्यादा होता है, लोग गोल्ड चाहते भी हैं। और सिल्वर का कीमत कम होता है तो कम चाहते हैं। फिर आओ अगर आयरन का, तो उससे भी कम होता है। मतलब कुल मिलाकर के किसी वस्तु की गुणवत्ता, कोई वस्तु कीमती है या नहीं, या मेजरमेंट किया जाता है वो मनी के टर्म में किया जाता है। अगर वस्तु महंगी है, इसका मतलब जैसे वुडलैंड का शूज आप खरीदते हो, श्री लेदर का शूज खरीदते हो, या बाटा का खरीदते हो, तो तीनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, क्वालिटी का अंतर होगा। यही कारण, ऐसा नहीं होता होगा कि क्वालिटी वुडलैंड का ज्यादा है और कीमती बिकेगा जूता श्री लेदर का या फिर टाटा वो अन्य का, ऐसा नहीं होता है। यानी क्वालिटी का मेजरमेंट होता है इन टर्म ऑफ मनी। सो मनी प्लेज द रोल ऑफ मेजर, यानी मेजर का भी रोल मनी करता है कि किसी वस्तु की गुणवत्ता को बताता है। जनरली क्वालिटेटिव वस्तु की, यानी जनरली कीमती वस्तु हमेशा क्वालिटी बिकती है। जिस वस्तु का कीमत अधिक होता है उसकी क्वालिटी के रूप में बिका जाता है, और जिस वस्तु सस्ते
दाम का होता है, उसकी क्वांटिटी बिकती है, मतलब मात्रा के रूप में उसका ये होता है, खरीदा जाता है। नेक्स्ट है, अगला है स्टैंडर्ड। मनी का थर्ड जो फंक्शन है वो क्या है? स्टैंडर्ड है। मनी ऑल्सो सर्व्स एज द स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट मेड आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम। बड़ा अच्छा रोल है मनी का। मनी ऑल्सो सर्व्स एज स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट मेड आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम। मतलब मनी को हम एक समय के बाद क्या करते हैं? पेमेंट के रूप में भी दे सकते हैं किसी को, और ये स्टैंडर्ड पेमेंट माना जाता है। जैसे मान लो लेंडिंग एंड बोरोइंग देयरफॉर मस्ट टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी व्हिच विल रीजनेबली स्पीकिंग कीप इट्स वैल्यू स्टेबल ओवर टाइम। मोस्ट कमोडिटी डिटेरिएट। कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें डिटेरिएट कर जाएगी with the passage of time, but if the money is properly managed, its value can be kept more stable than that of the article। और ये इनके वैल्यू घटेंगे नहीं, मतलब ये इनके वैल्यू सड़ेंगे नहीं, मुद्रा सड़ेंगे नहीं। इसलिए हम ऐसे पैसे को भविष्य के लिए क्या करते हैं? भविष्य के लिए भी वो काम करता है। इसलिए मनी एक स्टैंडर्ड क्या है? एक स्टैंडर्ड पेमेंट है कि वस्तु के जगह पे हम मनी को स्टैंडर्ड पेमेंट के रूप में, मनी सड़ जाए, स्टैंडर्ड वस्तु सड़ जाएंगे, कमोडिटी खराब हो जाएंगे, लेकिन मनी खराब नहीं होंगे। इसलिए मनी का तीसरा फंक्शन होता है स्टैंडर्ड के रूप में भी वो काम करता है। और फोर्थ फंक्शन है कि स्टोर, STOR, स्टोर मतलब जमा करना। मनी सर्व्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू और मोर करेक्टली इसको हम जमा कर देते हैं। इट एनेबल्स अ पर्सन टू कीप पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स लिक्विड। यानी ऐसे में हर आदमी एक अपने इनकम का या पोर्शन का वो अपने लिक्विड के रूप में रखना चाहता है। अब प्रश्न होता है कि व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विड का मतलब होता है तरल। तरल का मतलब होता है तरलता। तरलता का मतलब होता है कि मनी के रूप, मनी तरल होता है इसलिए कि हम कभी भी, तरलता का मतलब होता है कि वी कैन एक्सचेंज, we can exchange with an item into या with different things। हम कभी भी किसी चीज, हम ऐसे चीज जिससे कोई भी चीज को, डिजायर्ड चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सबसे तरल माना जाता है। मान लो कि हमारे पास अगर 1 मिनट के लिए ऐसे एग्जाम्पल हम आपको देंगे तरलता के रूप में। मान लेते हैं कि आपके पास 2 एकड़ जमीन है गांव में, और 2 एकड़ जमीन है और आपको एक कार खरीदना है, और जमीन कहाँ है? गांव में है। 2 एकड़ जमीन है जिसका कीमत हो सकता है 20 लाख हो, 50 लाख हो, पर आपको एक कार खरीदना है, तो हो सकता है कि उस कार के लिए वो जमीन पर लोन आपको नहीं मिले, क्योंकि गांव में, दूर गांव में जमीन है। लेकिन 20 लाख का या 50 लाख का वो जमीन है, फिर भी आप एक कार नहीं 2 लाख का खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 3 लाख का सोना है या जमीन अगर, या आपके पास कैश है, तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। मतलब कि कैश क्या है? सबसे लिक्विड माना जाता है, जिससे जब चाहें, एनी टाइम चाहें, आप डिजायर गुड्स को उससे परचेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स लिक्विड। लिक्विड एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एट एनी टाइम वन लाइक्स। आपकी जब मर्जी, जब अपने मर्जी से कोई भी चीज को, कोई भी सामान को आप क्या कर सकते हैं? उससे आप खरीद सकते हैं, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, और वो चीज क्या होता है? मनी होता है। मनी, हाँ, आप आपके पास अगर भैंस है, अगर आपके पास गाय है, अगर आपके पास कार है, तो कार से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। कार ज्यादा वो नहीं है, हो सकता है उसमें भी लिक्विडिटी हो, लेकिन हर समय नहीं भी हो सकता है। पर आपके पास मनी है तो आप किसी भी टाइप का, छोटे से लेकर के बड़ा चीज, मान ले आपके पास 10 लाख रुपए अभी पॉकेट में है, तो 10 लाख तक की चीज को तो आप खरीद ही सकते हैं कभी भी। 9 लाख का चीज खरीदना हो, तुरंत पैसा पे करेंगे, खरीद लेंगे। 1 रुपए का चीज खरीदना है, तुरंत खरीद लेंगे। 100 रुपए का चीज खरीदना है, खरीद लेंगे। मतलब कि मनी इज मोस्ट लिक्विड एसेट्स। मनी एकदम लिक्विड एसेट्स होता है पूरी तरह से। आप कभी भी, एनी टाइम, कभी भी कोई भी चीज खरीद सकते हैं। मोस्ट पर्सन्स इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हैव टू कीप करेंसी नोट्स इन देयर पॉकेट्स और एट होम, और दे मे
कीप करेंट अकाउंट विद द बैंक, विड्रॉएबल टू चेक्स। और हर आदमी हम में से, आप में से, या अभी हम यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहे हैं, फिर भी मेरे पॉकेट में कुछ ना कुछ कैश नकदी तो जरूर होगा, क्योंकि हमें उससे पेट्रोल भराना है, हमें उससे छोटे मोटे काम करने हैं, हमें उससे शाम में सब्जी ले जाना है, हमें उससे कोई चीज लेना है। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति के पास जो होता है वो कैश के रूप में, नकदी के रूप में होता है, या फिर वो नकदी के रूप में पॉकेट में रखे, या नकदी के रूप में घर में रखे, या नकदी के रूप में अपने अकाउंट में रखता है, करंट अकाउंट के रूप में रखता है, और लंबे समय के लिए भी रखता है। क्लियर है? तो मनी स्टोर भी किया जाता है, किस लिए? कि टू फुलफिल द पर्पसेस इन योर फ्यूचर। इफ वी store our money in the bank, we are always in a position to fulfill the needs day to day transaction in the coming future के लिए हम बैंक में पैसा स्टोर के रूप में रखते हैं। मतलब कि मनी के टोटल कितने फंक्शंस हैं? 4 फंक्शंस हैं। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड, एंड 4 इज स्टोर। Let us see the demand for money। अब हम लोग देखें कि मनी के डिमांड्स क्या होते हैं, मतलब कि मोटिव्स ऑफ डिमांड ऑफ मनी। मोटिव्स ऑफ डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा के मांग के कितने उद्देश्य होते हैं, ठीक है? तो द मॉडर्न आइडिया अबाउट द डिमांड ऑफ मनी वॉज पुट फॉरवर्ड लॉर्ड जेम्स केन्स ने कहा था। ये सिद्धांत किसने दिया है? हु गेव द थ्योरी ऑफ मोटिव ऑफ डिमांड ऑफ मनी। मोटिव ऑफ डिमांड ऑफ मनी का जो थ्योरी है, दिस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय जॉन मेनार्ड केन्स। केन्सियन थ्योरी है। ही वाज फेमस इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हु गेव बर्थ to what has been called the Keynesian economics। According to Keynes, the demand for money or liquidity preference, as he called it, means the demand of money to, broadly speaking, there are 3। यानी इनके हिसाब से टोटल कितने मोटिव्स हैं? डिमांड ऑफ मनी के 3 मोटिव्स हैं। 3 मोटिव्स पूरे करने के लिए कोई भी अपने मनी की डिमांड को करता है। थैंक यू।